ਹੁਣ ਬਦਾਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨਕਾ ਪੜਤਾ ਪੂਰੇ ਤਿਹ ਕਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਜੁਗ ਹੋਏ। ਰਾਖਹੁ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭੈਰੋਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ। ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਲਟ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੋ ਬਿਸਾਰੀ। ਸੁਨ ਸਹਜ ਮਹਿ ਬੁਨਤ ਹਮਾਰੀ। ਉਲਟ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੋ ਬਿਸਾਰੀ। ਸੁਨ ਸਹਜ ਮਹਿ ਬੁਨਤ ਹਮਾਰੀ। ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ। ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾਡੇ ਦੋ। ਰਹਾਉ ਬੁਨ ਬੁਨ ਆਪ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਜਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤਹਾਂ ਹੋਏ ਗਾਵੋ। ਪੰਡਿਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ। ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਇਖਲਾਸ ਨਿਰਖ ਲੈ ਮੀਰਾ। ਆਪ ਖੋਜ ਖੋਜ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰਾ। ਹਿਰਦੈ ਇਖਲਾਸ ਨਿਰਖ ਲੈ ਮੀਰਾ। ਆਪ ਖੋਜ ਖੋਜ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਂ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜੋ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 1158 ਅੰਕ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ,
उसका होका दिता सी और इस गल नूं अपने जीवन विच उन्होंने विदत किया कि निरभौ जपै सगल भाव मिटै। जिहड़ा व्यक्ति निरभौ परमात्मा का आराधन करदा है वो दुनिया के डरां तो मुक्त हो जाता है। इस सतगुरु की बाणी का सच कि जैसा सेवै तैसो होवै। जिहो जै दी तुसी सेवा करोगे आराधना करोगे उहो जिहा तुहाडा भी रूप बन जाएगा, तुसी भी उस तरह दे ही हो जाओगे। इसे करके सानू वर्त रखण तो बड़ियां मसाणियां ते मत्थे टेकण तो बहुत सख्ती नाल रोकिया गया है। किसी तरह की ये कोई फ्लैक्सीबिलिटी नहीं है कि हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, कर भी सकते हो कि नहीं भी कर सकते ना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पोथी परमेश्वर का थान और ये जितनी बाणी दर्ज है, क्योंकि वाह वाह बाणी निरंकार है, ये बाणी उस परमेश्वर का ही साकार रूप है। ये तुर की बाणी, खसम की बाणी और इस बाणी का सन्मान उवें ही करना है जिवें तुसी अपने इष्ट परमात्मा का करना है भाई। ये गल्लां साडी जिंदगी दे बहुत नेड़े दा सच है कि घर दी बहू, घर दी मालकन अपनी सस नूं अगर सवेरे उठ के मत्था टेकदी है तो कई बारी वो बजुर्ग माता कह देंदी है भी कुड़िए जे तू मेरी कोई गल मननी नहीं, सारा दिन मेरिया गल्लां नूं चुक चुक के मारना है ते आ जिहड़ा सवेरे उठ के पखंड करदी है इहदी की लोड़ है। इहदा अर्थ है कि गुरुद्वारे मत्था टेकना महज एक रस्म नहीं है, ये तो बहुत वड्डा धर्म कर्म है कि तुद नो नेवण मनन तेरा नाम। इसे करके मेरे सतगुरु पिता महाराज कहते सन कि कर डंडौत पुण्य वड्डा है। ये बहुत वड्डा पुण्य है। साडी संसारी जिंदगी विच तुसीं अपने बजुर्गां नूं जो मर्जी दे दिओ, सोहने कपड़े सवा के दे दिओ, सोहने सोहने पदार्थ बना के दे दिओ, अदब नाल आके मत्था टेक दिओ ते तुहाडे बजुर्ग दा हथ उसे वक्त तुहाडे सिर ते टिक जांदा है। उसे वक्त उहदे मूँह तो एक गल निकलदी है, पुत्रा जिउंदा रह।
परमात्मा तैनू चढ़दी कला बख्शे, वाहिगुरु तैनू होर उच्चे मान मरतबे दवे। दुनिया की हर वस्तु तो ये वड्डा कर्म है मत्था टेकना, क्योंकि परमात्मा सानू बाणी रूप दे विच प्राप्त होया है। सतगुरु जी ने वाह वाह बाणी निरंकार कह के इस दी सराहना की है और ये भी दसिया कि कलयुग में कीर्तन प्रधाना। ये जिहड़ा युग अज बतीत हो रहा है, जदों तुसी दुनिया के धर्मां कर्मां की गल करोगे तो सब तो प्रधान सब तो वड्डा आपां किसी पिंड विच जाके जाइए तो की पुछदे हां, इस पिंड का मुखिया कौन है। बड़े सारे सूबे ऐसे ने, किते किसी नूं पिंड दे विच वड्डे नूं ठाकुर कहंदे ने, किते सरदार कहंदे ने, किते जिहड़ा संविधानक पद है कोई सरपंच कहंदा है। पर इधर यूपी वाल बहुत सारे थावां ते ये भी कहा जाता है भी साडे पिंड दे प्रधान ने। बाकी भी संस्थावां दे विच जथेबंदियां दे विच भावें हजारां हजारां भी बंदे क्यों ना होण, आपां इक्को ही गल पुछदे हां, तां प्रधान कौन है, मुखी कौन है, आगू कौन है। दुनिया दे विच करोड़ां ही धर्म कर्म ने पाई, पर हर कीरत साध संगत है सिर करमन के कर्मा। हरि दी कीर्ति ते प्रभु प्यारियां दी संगत, ये सब तो श्रोमणी है, प्रधान है। अज भी तुसी वेखो, आखण औखा साचा नाम, हर चीज सौखी है। अज दे समय विच सब तो औखा काम की है, उस परमात्मा की सिफत सलाह करनी। क्योंकि इत्थे मैं दा इन्ना वरतारा है कि इहदे विचों तू दी आवाज़ कढ़ण वास्ते मनुख दी सारी जिंदगी जिहड़ी है कई बारी भेटा चढ़ जाती है। हुणे कीर्तन होया है ते जिन्हां गुरु के कीर्तनियां ने आशा की वार सरवण करवाई है, जिहड़े उन्हां दे कोल साज सन उन्हां दे विच एक तबला है। और मैं तबला वजाउणा ते नहीं जानदा, हारमोनीयम कुछ मैनू आउंदा सी जदों मैं पढ़दा सी, बड़े सारे शब्द मैं कीर्तन भी कर लैंदा सी। पर तालां दे प्रति जिहड़े तबले दे ताल ने उन्हां दे प्रति जिन्नी क मैं जानकारी मुढ़ले तौर पर हासिल की है, उहदे विच कोई भी बोल जिहड़ा है वो मम्मे अक्षर तो नहीं शुरू हुंदा जां तत्ते तो हुंदा है जां तद्दे तो शुरू हुंदा है। पर ये जिस चमड़े तो तैयार होया है, जिदी चमड़ी लैके इस तबले नूं बनाया गया है,
वो बकरी सारी उम्र ही मैं कर दी है। इसे करके सियाणियां ने एक बड़ी सोहनी सिंपल सधारण बड़ी सौखी जही बड़ी साडे जिंदगी दे नेड़े दी एक उदाहरण दी है कि भाई जे बकरी दे विचों मैं दी थां किते तू दी आवाज़ कढ़नी होवे ते पहला उहदा गल वड्ढना पैंदा है, फिर उहदी खल उतारनी पैंदी है, फिर उहनूं मसालियां दे विच भिगो के रखना पैंदा है, भिगोना पैंदा है, फिर ये चमड़े नूं कुटिया जाता है, कुट के फिर ये पुड़े तैयार होंदे ने जिहड़े डुगी दे धामे दे उपर लगदे ने ते फिर इन्हां दे विचों वो मम्मे अक्षर की आवाज़ मुक जाती है। हुण तुसीं किते बह जाओ पाठ सुखमनी साहब का भी कर लो, करदियां सारी मैं कीता, फिर उत्थे पहुंच गया बंदा। असल विच जिसनूं तू जनाहे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। तू जनावें ते जानिया जा सकदा है, तू गवावें ते गाविया जा सकदा है। ये गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको किरपा धारी। जिदे ते उन्हें किरपा की उन्हें रब दे गुण गाए ने, नहीं तो बंदा पाठ सुखमनी का भी करे गुण अपनी गाएगा। पूरा सुखमनी पढ़ के उन्होंने पूछो भी कोई एक गुण तू परमेश्वर का गाया, क्या वेखो की लिखा है भाई कि मानो की टेक बिरथी सब जान देवन कहो एक है भगवान। कोई है? पाठ करने तो बाद फिर शुरू हो जाएगा, मैं गलीचे दिते जी, मैं इत्थे सोने दे छब्बे दिते जी, मैं इत्थे सीमट दिता जी, मैं सरिया दिता जी। एडी लम्मी तू बाणी पढ़ी है। जदों कि सतगुरु की बाणी बार बार एक गल सानू समझाती है कि रब की सिफत सलाह उस रब की बख्शिश तो बिना हो नहीं सकती, क्योंकि औखा काम ही ये है। सारे काम सौखे ने, भगती सब तो औखी है, क्योंकि उहदे विच रब की गल करनी पैगी। तुसीं अपनियां गल्लां करनियां, हुण सारी रात लंघ जाएगी, सुनाई जाओ मैं उत्थे गया, मैं ये कीता, मैं उत्थे गया, उत्थे मैनूं वो मिलिया, उत्थे मेरे नाल इंज होया, सारी रात ही लगा रहेगा। तो जे किते रब की सिफत सलाह करन लगे तो अद्धे घंटे च वो बाणी का गुटका सराहने पिया रह जाता है, बंदा सौ जाता है। भगत कबीर जी ने बड़ी बेबाकी नाल ये गल्लां साबित कीतियां ने। निरभाव की आराधना करोगे डर तो मुक्त हो जाओगे। जिहड़ा आदमी डरी जाता है वो भी कही जाता जी मैं तो पाठ करदा जी। किहदा पाठ करदा तू? निछ तो तू डरदा है, बिल्ली तो तू डरदा है, पाठ किहदा करदा है? मैं अमेरिका वर्गे मुल्क विच वेख्या निछ आ जाए गोरियां तो लैके ज्ञानियां तक, वो दो कदम तुहाडे वाले पासे अगे वध के कहणगे गॉड ब्लैस यू।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਛ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਛ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਠ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਡਰਪੋਕ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ 5-7 ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੱਕ ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਇਆ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਨਾ ਹਉ ਨਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ। ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਲੀ ਪਈ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬਵਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੈਲਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਦਬ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅਫਸਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸਟਾਰ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ? ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਟਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਟਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਡਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
भगत कबीर कहते मेरा इन्हां गल्लां नाल संबंध ही नहीं कि मुलाणियां दी शरह की कहती है ते पंडितां दे कर्म कांड की कहते हैं। मेरा इन्हां चीज़ां नाल कोई लेना देना नहीं। साडे कोल धरती मौजूद है, इत्थे तो इस गल का ही झगड़ा है। किसी आदमी ने लाल कपड़े पाए ने, मेरे वर्गा उंजी कचीचियां वटी जाता, आ पता नहीं केड़ा बूबना साध आ गया है भी पुछो तेरे को रोटियां मंग के खांदा है भी पाई रखण दे लाल कपड़े पाए ने। तो अमेरिका वर्गे मुल्क विच कोई निकर पाई फिरे, कोई चोला पाई फिरे, कोई अपना हाथ वो हरे रामा हरे कृष्णा वालिया वांगू एवं झोले च पाई फिरे, उन्होंने किसी ना कोई वास्ता नहीं। कोई गल च माला पाई फिरे तां कोई नहीं, कोई गल च स्टोन पाई फिरे तां कोई नहीं। कदे तुसी अमेरिका दे विच धर्म दे दंगे फसाद सुने ने? ठीक है, कोई विरला विरला कोई सिर फिरिया व्यक्ति हर थां ते होएगा, पर इसे करके वो मुल्क तरक्की करी जाते हैं। कौन केड़ी भाषा बोलता है कोई लेना देना नहीं, कौन अपने इष्ट नूं किवें मनदा है कोई लेना देना नहीं। इत्थे मुसलमानां दी बांग सुन के हिंदू सड़ी जाता है, हिंदुआं दे टल खड़कदे सुन के मुसलमान गुस्सा करी जाता है। क्यों भाई? भगत जी कहते मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई रोजे रखदा है, कोई वर्त रखदा है, मैं की लेना है? पर मेरा हुण इन्हां गल्लां नाल कोई संबंध नहीं। मैं आप जी नूं थोड़ी जी उदाहरण दे दियां कि साडा धर्म कैसा है, क्योंकि साडे कोल अपना कोई विजन नहीं। ये गल तो इत्थे तुसीं रोज़ सुणदे हो कि साडा कोई अपना पैरामीटर नहीं है। किवें पता लगे मैं सुखी हाँ? मैनू अपने आप नूं ये किवें पता लगे कि मैं सुखी हाँ? मैनू उदों पता लगता है जो 5-7 दुखी मिलते हैं, फिर मैं कहना भी वाहिगुरू मैं तो बड़ा सुखी हाँ। आ वेखे तो दवाई खा के सौंदे ने, ये तो सोटी लैके तुरते ने। मैनू किवें पता लगे मैं दुखी हाँ? क्योंकि मेरा अपना तो विजन कोई है ही नहीं। जो 5-7 अमीर वेख ले तो मैं दुखी हो गया, 5-7 गरीब वेख ले तो मैं सुखी हो गया। सरदार हरमिंदर सिंह जो कारोबार करते सी तो अपना गोत्र भी लिखते सी सेठी। बड़े वड्डे व्यापारी सन बॉम्बे विच। जीवन विच पलटा आया, धर्म के प्रचार विच तुर पै और मरण तो पहला पाठ बुद्ध दे विच को अपने आप दे विच अथॉरिटी सन कि उन्होंने पुछ लिया जाए भी इस शब्द का उच्चारण की है, ये अर्थ की ने। गुरबाणी ग्रामर तक वो एक मन्ने हुए विद्वान सन। वो एक गल सुनाते हुंदे सी कि कोई मुसलमान राती किते उन्हें रोटी खाधी, कबाब खाधा, सौ गया। वो सफाई नहीं की होनी, वो सवेरे सारा कुछ दंदा जी फसिया रह गया। हुण सवेरे उठ के सोचता है भी जे मैं कढ़ के सुटा ये भी पाप है, तो जे दंदां दे विचों रात दा फसिया कढ़ के खावां तो ये मुर्दा खाण वाली गल है। कहंदे हो बड़ी हासरस तरीके नाल गल सुणाउंदे सी कि गया मस्जिद विच जाके मुलाणे नूं पुछया
कि मुल्ला जी दसो, तो मुल्ला जी कहन लगे भी भाई इहो जी समस्या कदे पहला तो मेरे को आई नहीं, हुण इहदे बारे तैनूं मैं की दसां भी तू की कर, किवें करें ते तेरा धर्म जिहड़ा है वह बच सकदा है। वो मुसलमान कहे भी मुल्ला साहब भी हुण मैं किहदे कोल जावां जे मेरी समस्या दा तुसीं हल नहीं करना। अखीर उन्हें कहा भी नाले मेरे गलों लै जाएगा तो नाले हल हो जाएगा। कहन लगा तू इदा कर, तू मंदिर चला जा। वो कहता मैं मंदिर किवें चले जावां, मुसलमान मंदिर थोड़ा जाते होंदे ने, मुसलमान दा मंदिर नाल की संबंध है। वो कहता भी तू अपना मसला हल करना है कि नहीं करना। कहता जी करना है। कहता फिर जा मंदिर चला जा। कहता की करा। कहता उत्थे जाके पंडित जी नूं पुछी भी पंडित जी कदे तुहाडे कोल इदां दा कोई मसला आया होवे कि किसी बंदे ने रात रोटी खाधी होवे तो मीट दे कोई तंद किसी के दंदां 'च फसे होण ते उन्हें आके सवेरे तुहानूं सवाल कीता होवे भी मैं दसो जी कढ के सुट दियां कि खा लवां ते तुसीं की करदे हो। वो कहता भी इहदा की मतलब, वो की करदे ने उहदे तो मैनूं की मिलेगा। कहता कमाल हो गई। कहता जी हिंदू कढ के सुटदे होणगे ते तू खा ली, क्योंकि मुसलमान तो ही उल्ट काम करे। जे वो सुटदे होणगे तू खा लवीं, जे वो खांदे होणगे ते तू सुट देवीं। कैसा धर्म है। मैनूं खिमा करना, अज भी साडे विच कट्टड़ता है, ज्ञान किते नहीं हैगा। और इन्नी कट्टड़ता दी साडे अंदर एक गल घर करके बैठी हुई है। मैनूं नहीं पता लगदा जी आपां किन्नी कीमत अजे होर देनी है। सवाल ये नहीं कि बंदा शुभ कर्म किन्ने करदा है, मानवता नाल प्यार किन्ना करदा है। मैं तो पिछले दिन ही भी बेनती की सी, मैं सुन रहा सी कि किसी ने पूछया किसी मुजाहिदीन मुसलमान नूं भी तुसीं लोकां नूं क्यों मारदे हो। कहंदे अल्लाह ताला खुश हुंदा है। मेरे मन में एक सवाल आया, ये कैसा अल्लाह ताला है। वो पैदा करी जाता है ते ओहदे मनण वाले उन्हां बंदियां नूं मारी जाते हैं तो अल्लाह ताला खुश होई जाता है। तो चंगी गल नहीं भी तुसीं इन्हां नूं मारन दी थां ते अल्लाह ताला नूं कहो भी इहो जिहे बंदे पैदा ही ना करे जिन्हां नूं तुहानूं मारना पवे। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, रब ऐसा नहीं है। कोई धर्म इस तरह का पाठ नहीं पढ़ाता, क्योंकि धर्म की है, सर्व धर्म में करो कृपा, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म। दुनिया च 300 धर्म ने, 400 धर्म ने, 500 धर्म ने। क्योंकि हुण मैं वेख्या भी मतलब हद है, नवी फिगर देनी है, आउंदा भावें कुछ भी ना हो। क्योंकि किहड़ी किसी ने गिण लैनी, किहड़ी किसी ने पुछ लैनी है। जो मूँह आया बोली जाओ, इत्थे कोई किसी गल की कोई कन्फर्मेशन थोड़ा होनी, ना किसी ने करनी है ना किसी ने करानी है। दुनिया के जिन्ने मर्जी धर्म होण, पर एक गल चेता रखना, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। रब की भगती ते चंगे काम। हुण सवाल है भी चंगे काम कौन करदा? चंगे काम कॉमन ने। हिंदुस्तान च भी जिहड़े चंगे ने, वो पाकिस्तान च भी चंगे ने। जिहड़े पाकिस्तान में चंगे ने, वो अमरीका में भी चंगे ने। जिहड़े अमरीका में चंगे ने, वो रशिया में भी चंगे ने। पर जिहड़े काम इत्थे माड़े ने, वो लाहौर भी माड़े ने, वो लंडन भी माड़े ने,
वो अमेरिका च भी माड़े ने, वो कनेडा विच भी माड़े ने। धर्म की कहता है? धर्म ये कहता चंगे काम करो, पर बड़ी अजीबो गरीब हालत है ये गुरुआं पीरां दी धरती ते। ये गल तुहानूं कनेडा अमेरिका नहीं मिलेगी, पर हिंदुस्तान दीयां गड्डियां बसां ट्रकां ते लिखिया मिलेगा नेकी कर अर जूते खा। ये गल तुहानूं कदे कनेडा अमेरिका नहीं मिलेगी, इत्थे लिखी मिलती है। ये गुरुआं दी धरती है, पीरां दी धरती है, फकीरां दी धरती है, औलियां दी धरती है, पैगंबरां दी धरती है, ये देवी देवतियां दी धरती है। पर इत्थे लिखिया होया है नेकी कर अर जूते खा। इहदा अर्थ की है कि जदों शुभ कर्म करने होणगे तुहानूं मेरे गुरु कलगीधर पातशाह की बाणी पढ़नी होएगी कि दे शिवा बर मोह इह शुभ कर्मन ते कब हो ना टरो। ये गल सच्ची है। चंगे काम करने ये सौखे नहीं। और मैं आप जी नूं बेनती करदा कि मैनूं तुसीं दस दिओ कि माड़े कर्मां दी सज़ा तुसीं कदे ऐसी सुनी है? गुरु अर्जन देव पिता जी नूं तां तवी ते बिठा के साड़िया गया, भगत कबीर जी नूं गंगा विच सुट दिता गया, कपड़े विच बन के जिवें गंढ बन्नी दी है फुटबॉल बना के हाथी अगे सुट दिता गया। इत्थे किसी की खोपरी लाई जा रही है, किसी का बंद बंद कटिया जा रहा है, किसी को चरखड़ी ते चढ़ाया जा रहा है। एक राजे ने कदे दूजे राजे की फौज नाल इदां नहीं कीता। वध तो वध यह है कि इनू शूट कर दिओ, इहदा सिर कलम कर दिओ, गल खत्म हो गई। पर इत्थे ते टोका ते मुड्ढी दे के बिठा दिता गया भी इहदा बंद बंद कटना है, क्योंकि वाहिगुरू वाहिगुरू किवें कहंदा है। शुभ कर्मां दी जिन्नी सज़ा है ये सज़ा दुनिया दे विच होर किते नहीं है। हुण कई तुहानूं बंदे मिलणगे, असीं ते जी चैरिटी करते हैं जी, असीं ते सेवा करते हैं जी, असीं ते भले दे काम करते हैं जी, ये बिना भगती बंदगी तो नहीं होने जे। ये बिना भजन बंदगी तो नहीं होने। मैं एक छोटी जी उदाहरण दिया। भाई धर्म सिंह जखमी कीर्तन कर रहे थे। भाई अमरीक सिंह जखमी के पिता जी, ये गल है नवे नंगल की, जिन्होंने भाखड़ा नंगल कहने हैं ना। उत्थे एक पुराना नंगल एक नवा नंगल है, जिथे NFL है, फैक्ट्रियां लगियां ने। वो पढ़े लिखे लोगों का बड़ा सोहना गुरुद्वारा। नवा नंगल चंडीगढ़ नालों भी सोहना है, क्योंकि चंडीगढ़ तो बाद वसाया सी गोरियां ने। उस तो बाद वो डिवेलप होया है। एक बच्चा रोन लग गया। भाई धर्म सिंह जखमी होरां ने कहा, बीबी बच्चे नूं चुप कराओ। बीबी ने गल सुनी नहीं। उन्हें फिर कहा, बीबी बच्चे नूं चुप कराओ। बीबी ने गल सुनी नहीं। और जदों दूजी तीजी वारी बोले तो बीबी उत्थे ना जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है उहदे आले दुआले बरांडा है हाल दे। वो बीबी हाल चों निकली तो बरांडे च बह गई। हुण उन्नी आवाज़ फिर अंदर जावे। अखीर भाई साहब ने कहा भी प्रबंधक सेवादार इत्थे नहीं बैठे हुए, भी कोई सज्जन जाओ बच्चे नूं चुप कराओ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਅਫਸਰ ਸਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲਿਮਟਿਡ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਦੂਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਨਿਆਣੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਘਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਘਰ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਸ਼ਬਦ, ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। लोगन की चुतराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो कोई बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। अज नेकी भी वही करते ने जिहड़े सिर्फ उस्तत सुनते ने, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਵੀਰ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। मैं बच्चे इस करके बाहर लै आया, बाकी संगत कीर्तन सुन लवे। उन्हें कहा भी हाँ हाँ मैनू, मैं प्रधान, मैनू इन्नी गल किवें कहती किसी ने। सब तो औखा काम है शुभ कर्म करने। जिदन शुभ कर्म करन तुरोगे तुहानू अरदास करनी पवेगी कि दे शिवा बर मोह इह, शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। शुभ कर्मां दे विच धर्म युद्ध भी होएगा, जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब ने कीता है, जिहड़ा गुरु कलगीधर पिता महाराज ने कीता है। आ जिहड़ी थ्योरी अज मेरे वीरां ने पढ़ी है ना, उन्हें नहीं ज्ञानी जी तुहानू की, मेरा ख्याल जे तुहाडा वस चलिया तो तुसीं तां गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के प्रति की लिखते होगे, की लोड़ सी? कदे तुसीं इतिहास पढ़िया अपना? कदों गुरु हरगोबिंद साहब होए, 4 जंग लड़े उन्होंने। करतारपुर की जंग तो बाद 1800 सतगुरु दे कोल सिख फौजी सन। 1800। दुश्मन की फौज कितनी है जी? 90,000। ये 90,000 लाहौर तो नहीं आई, ये जलंधर तो नहीं आई, ये तकरीबन अद्धे तो घट मुगलिया फौज सी ते अद्धे तो बहुती छेड़ सी। उस इलाके दे सब डाकू, बदमाश, चोर, बटपार सब रल गया। इनू कहते ने छेड़। छेड़ की है? बुरे लोगों का एक समूह। वो अक्सर इदा ही करते कि लड़न वालियां 2 फौजां विचों जिहदे जितण दे आसार होंदे वो उहदे नाल जाके रल जांदे सी। वो कहंदे हुंदे सी भी असीं तुहाडे नाल रल के असीं भी हमला करिए। तो अगला पुछदा सी हाकम भी लओगे की? तनख्वाह लवोगे? क्योंकि जंग वेले स्ट्रेंथ सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ है। जे 20,000 की थां फौज 40,000 बन जाए तो होर की चाहिए? वो पुछदा भी लओगे की? वो कहते कुछ नहीं लवांगे। फिर तनख्वाह कोई? कहते नहीं। की लओगे? कहते जित तुहाडी होएगी, लुट साडी होएगी। भाव जे जो जित जाओगे वो फतेह तुहाडी है, पर जिहड़ी उस वेले असीं लुट घसुट कर लईए, धन माल लुट लईए, वो साडा। ये आ गए जी 90,000 इकट्ठे हो गया। 24 घंटिया में सतगुरु जी ने निबेड़ दिते। हजारां मर गए, हजारां भज गए। और उस तो बाद किन्ने साल गुरु हरगोबिंद पिता की हजाती रही
कीरतपुर साहब, कदे किसी मुगल हाकम ने मुड़ के हमला नहीं किया। फिर गुरु साहब बने गुरु हराए साहब, कितना लंबा समा उन्होंने इस तखत पे बैठ के मानवता का मार्गदर्शन किया, किसी मुगल ने हमला नहीं किया। फिर बने गुरु हरकृष्ण साहब, भावें उन्हों का समा काल थोड़ा सी पर किसी मुगल ने कोई हमला नहीं किया। फिर बने गुरु तेग बहादुर, किसी मुगल हाकम ने ना गुरु ते हमला किया ना गुरु के सिखा ते हमला किया। अज हमला कश्मीरियां ते है। कश्मीरी फरियादी बन के आनंदपुर साहब आते ने ते गुरु तेग बहादुर साहब उन्हों की बांह फड़ लेंदे ने। और गुरु तेग बहादुर की शहादत तो बाद फिर गुरु कलगीधर पातशाह के जंगां ते युद्धां दा मुढ़ बजदा है। तो की कहा जाए भी गुरु तेग बहादुर साहब ने लड़ाइयां गुरु कलगीधर पिता के गल पा दित्तियां। कि तुसीं कहना चाहोगे भी गुरु तेग बहादुर पिता तुहानूं की लोड़ सी? जुलम होंदे सी हिंदुआं ते, जनेऊ उतरदे सी हिंदुआं दे, तिलक उतरदे सी हिंदुआं दे, मंदिर ढहंदे सी हिंदुआं दे। किसी गायत्री नूं खतरा सी ते हिंदुआं दी सी। सच्चे पातशाह तुहानूं ते औरंगजेब ने क्या ही कुछ नहीं, तुसीं काहनूं इन्हां दी बांह फड़ के दिल्ली आ गए? ओ भाई नेकी दे काम च ये भी एक काम है, चंगे कामां विच जुल्म दा विरोध करना, मजलूम दी रखिया करना, जरवाणे दी भखिया करना, ये भी धर्म है। तुहाडे सामने ये महाभारत वाला धर्म नहीं है साडा कि तुहाडे सामने एक बच्ची नूं बेपत किया जाए तो वड्डे वड्डे बजुर्ग नीवी पा के बैठे होण, वो कवे पिताजी आ मेरे कपड़े पाड़ रहे हैं, तो कवे पुत्र असी कुछ नहीं कर सकते, असी बद्धे होए हैं हस्तिनापुर की मर्यादा नाल। सिख धर्म ऐसा धर्म नहीं है। अगर तुहाडे सामने किसी बीबी की इज्जत लुटी जाती है तो तुहाडा कोई धर्म नहीं है। मत उदों बाद भी कहना कि ठीक है जी मैं उत्थे नहीं बोलिया जी, पर मैं पाठ करना, तेरा पाठ उत्थे ही खत्म हो गया। पाठ तो करना ही ये सीगा कि दे शिवा बर मोह यह शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। भले कामां दा, चंगे कामां दा अर्थ ये नहीं है कि केवल जोड़े पालिश कर ले जी, घड़ी घड़ी पत्थर ते तुसी पोचा मार देता जी। मैं तो रोज बेनती करना, यह बाबा जी ने की करिए, हाथ धवा दिओ जी, फिर हाथ धवा दिओ जी, फिर हाथ धवा दिओ जी। वो पुछो इन्हें करना की है? खाने के बदाम ही ने। इन्हें जुल्म के विरुद्ध कोई नहीं जे बोलना, इन्हें मजलूम की रखिया वास्ते खड़े कोई नहीं होना, इन्हें गरीब की मदद कोई नहीं करनी। एवं नहीं कहता दर्शन सिंह अवारा, वो कहते कदे रोंदा हिसाया ही, कदे किसी के अथरू पूंजे ने ना, उन्होंने ते भी मेरे मुड़ के हथ कौन धोएगा? जो किसी ने चुप कराओगे ना, वो मूँह से हथ फेरना पेगा, वो हथ फेरे नाल तुहाडे हथ जूठे हो जाएंगे। दसो फिर बनेगा की? वो तो हथ किसी काम दे ही नहीं रहने। किसी को सट लग गई, वो जख्मां ते पट्टी करनी पैगी। कोई एक्सीडेंट हो गया, वो मूँह ते मूँह रख के हो सकता है उन्होंने साह देना पवे, पर मेरे धर्म का की बचेगा? मेरा तो खत्म ही हो गया सारा कुछ। अज भी शायद सरदार लखा सिंह वुलवरहैम्पटन इंग्लैंड के रहने वाले एक कथा सुनते होण, उन्होंने मैनू खुद सुनाई। कहते ज्ञानी जी मैं जिन्ना चिर जिंदा रवांगा मैं शर्मसार रवांगा। कहता मैं फैक्ट्री जा रहा, मेरे अगे एक्सीडेंट होया, जिहड़ी मेरे तो अगली कार है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਰਬਨ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨੌਨ ਸੀ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪੱਗ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟ ਜਾਤ ਕੁਲ ਦੋ ਬਸਾਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਨਾਲ, ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੀ 2 ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੈਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 75 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸੁਚਮਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਧੋਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਸਫਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਕੁੱਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬੁਣਤ ਹਮਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਡੋਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਬੁਣ ਬੁਣ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਘਾੜਤ ਕੱਢਦਾ ਪਾਈ।
मैं उसनूं अपने आप नूं पहनाउणा जदों मैं अपने सुरत की ताणी तणदा जै नहीं आप तहां होए गामो, जिथे आपा भाव है ही नहीं मैं उत्थे जाके रब की सिफत सलाह करदा। सतगुरु रोज समझाउंदे ने, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। वासना तो रहत हो के गा के तो वेखो किड्डी छेती रब की कला वरतदी है। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछू ना लिया। की लिखिया है पंडितां ने, धर्म इदा कमाओ, कहते मैं कुछ नहीं लेना देना। मुलाणिया ने किवें लिखिया है, मैं उहदे तो भी कुछ नहीं लेना देना। उन्हां दा धर्म उन्हां नूं खूब है, मेरा धर्म मैनूं खूब है। मैं तुहानूं अपने रस्ते की गल दसदा कि हृदय इखलास निरख ले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। कि कर्म कांड ते शरा जिहड़ी है, जिहड़ी पंडितां मुलाणिया ने लिखी है, कहंदे मैं छड्ड दित्ती है। पर यह मैं जरूर तुहानूं दस दिया, जिहदे हिरदे विच प्रेम है उन्हें रब दे दीदार पाए ने पाए। अंदर प्यार होना बड़ा जरूरी है। साच कहूँ सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कर्म कांडां दे राही रब नहीं मिलेगा। सतगुर किरपा करन, उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। भुल्लां मेरियां ने खिमा कर देनियां। उपदेश सतगुरु जी दा है, अपने पल्ले मन लेना। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी